Hello everyone, let's start the question. The question says that the equation of the plane passing through the point 1, 1, 1 and perpendicular to the planes 2x plus y minus 2z equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z equal to 7 is option A minus 14x plus 2y plus 15z equal to 3, option B 14x plus 2y minus 15z equal to 1, option C 14x plus 2y plus 15z equal to 31, option D 14x minus 2y plus 15z equal to 27. So here we need to find the equation of the plane that passes through the given point and it is perpendicular to the given planes. So since it is perpendicular to the given planes, we will find the normal vector, and normal vector is given by determinant of I cap, j cap, k cap, and under this we will write the x, y and z coefficients of the given planes. So the x, y and z coefficient of the first plane is 2, 1, minus 2 and the second plane is 3, minus 6, minus 2. So we'll find the determinant here. So this will be equal to I cap into 1 into minus 2, that is minus 2, minus of minus 2 into minus 6, that will be minus 12, then minus j cap, 2 into minus 2 is minus 4, minus of 3 into minus 2, that gives plus 6, plus k cap, 2 into minus 6 minus 12, minus of 3 into 1, that is minus 3. So this will be equal to I cap minus 14, and then here we'll have minus j cap, 2 plus k cap into minus 15. So we can write this equal to minus 14 I cap minus 2 j cap minus 15 k cap. So this is the normal vector. From this we can get the direction ratios. So direction ratios of normal to the required plane is, we'll take it as the direction ratios are given by the symbol A, B and C. So this will be equal to, so here the coefficients of I cap, j cap and k cap are the direction ratios, and this will be minus 14, minus 2, minus 15. So from this we have got the direction ratios. Now it's given that the plane passes through point, we'll take it as x1, y1, z1, that is given as 1, 1, 1. So we have the formula of equation of plane, which is given by A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0. Here we know A, B, C are the direction ratios. So now we can write this as minus 14 into x minus 1 plus minus 2 into y minus 1 plus minus 15 into z minus 1 equal to 0. So we'll expand this. So this will be minus 14x plus 14, and here we'll have minus 2y plus 2 minus 15z plus 15 equal to 0. So this will be minus 14x minus 2y minus 15z. So here plus 14 plus 2 gives 16. 16 plus 15 is plus 31 equal to 0. So rearranging, we'll get this as 14x plus 2y plus 15z equal to 31. So this is the required equation of the plane. So the correct option is option C. Thus we can conclude, therefore the equation of the plane is option C, 14x plus 2y plus 15z equal to 31. Thank you. Hello everyone, the question is, let P be the image of the point 3, 1, 7 with respect to the plane x minus y plus z is equal to 3. Then the equation of the plane passing through P and containing the straight line x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 1 is x plus y minus 3z is equal to 0, 3x plus z is equal to 0,
x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट गिवन है जिसकी इमेज p बता रखी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इस प्लेन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेन एक दे रखा है, ठीक है, और पॉइंट 317 यहाँ पर है। उसके परपेंडिकुलर पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। सपोज ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये पॉइंट ये दे रखा है 317। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब इमेज जो इसकी होगी वो बिल्कुल इस प्लेन से उतने ही डिस्टेंस पर होगी जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट ए है। ये मैं कुछ इधर मान लेता हूँ, वो पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पॉइंट पी है हमारे पास ये वाला। अब मैं यहाँ से मैं लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। ये ए पी का मिड पॉइंट होगा और ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन की इक्वेशन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो ए बी की अगर हम इक्वेशन लिखें, लाइन ए बी की इक्वेशन लिखें, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, हमारे पास पॉइंट ये गिवन है 317, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन 1। डायरेक्शन रेशियो इसके इक्वल ही होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो किसी भी प्लेन का जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, तो लाइन की डायरेक्शन में ही होगा डायरेक्शन रेशियो। तो इसलिए मैं इसको मैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल ही ले रहा हूँ, इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई ए बी की। तो यहां से हम पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं, पॉइंट बी लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 7। अब ये पॉइंट बी जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट की वैल्यूज को हम इस प्लेन में पुट करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करता हूँ इधर। एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 3, वाई की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस जेड की जगह लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6। 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं बी में अगर पुट करूंगा, मैं यहीं पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, तो ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 3 5 आ गए। अब बी ए और पी का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमारे पास अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये वाला, बीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, और तीसरा गामा प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इन तीनों से यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी और गामा की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे इधर -1 5 3। तो ये बात तो हो गई इमेज की। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, अब देखो इमेज हमने निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि ये जो इमेज है यानी कि पॉइंट P है, ये एक प्लेन पर है और उसी प्लेन से ये स्ट्रेट लाइन भी पास हो रही है, ये वाली जिसकी इक्वेशन ये है। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इसको मैं एक बार फिर से डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। तो हमको एक प्लेन की इक्वेशन इसमें निकालनी है। सपोज हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से है,
जिसपे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, और उसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लाई कर रही है। जरूरी नहीं कि पॉइंट P से ही लाई करे, पर लेकिन इस प्लेन से लाई कर रही है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब इस प्लेन से पास कर रही है। तो मैं स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे पास हो रही है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या हो गई? 1 2 1। और ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं x-0 y-0 z-0, यानी कि पॉइंट 0 0 0 से पास कर रही है, यानी कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो इधर मैं O लिख देता हूँ, ओरिजिन 0 0 0 इस पॉइंट से पास कर रही है। तो प्लेन की अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो को मैं लेट ABC मान लेता हूं। ABC इसकी डायरेक्शन रेशियोज को मान लेता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज लाइन की और प्लेन की आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये है a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब दूसरे केस में हमारे पास पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P -1 5 3 हमारे पास गिवन है। तो प्लेन की अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ए बी सी है, तो प्लेन की जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 इसलिए क्योंकि प्लेन यहाँ पे 0 0 0 से पास भी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो अब इसमें अगर हम इस पॉइंट, अब ये पॉइंट हमें गिवन है कि पॉइंट P इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को इस प्लेन पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा -a प्लस 5b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 - 5। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 -1 प्लस 1। ये हो जाएगा 5 प्लस 2, और इसको मैं एक कांस्टेंट k के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये सॉरी 1 है ये। b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई -4, c की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू k आ जाएगी, b की वैल्यू -4k आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास 7k के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इन ए बी सी की वैल्यू को अगर हम प्लेन में पुट करेंगे और k उसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x - 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ये हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है। थैंक यू। Hello everyone, let's start the question. Question says that the equation of plane containing the line 2x minus 5 plus z is equal to 3, x plus y plus 4z is equal to 5, and parallel to the plane x plus 3y plus 6z is equal to 1 is. So we have to choose the correct option. Now let the equation of plane containing the lines 2x minus 5y plus z is equal to 3 and x plus y plus
4z is equal to 5. Now 2x minus 5y plus z minus 3 plus lambda x plus y plus 4z minus 5 which is equal to 0. Now it can be written as 2 plus lambda x plus lambda minus 5 into y plus 4 lambda plus 1 into z minus 3 minus 5 lambda which is equal to 0. Now this plane parallel to the plane x plus 3y plus 6z which is equal to 0. Which is equal to 1. Now 2 plus lambda upon 1 which is equal to lambda minus 5 upon 3 which is equal to 4 lambda plus 1 upon 6. So this is by using a1 upon a2 which is equal to b1 upon b2 which is equal to c1 upon c2. Now let us take the first two quantities, that is 2 plus lambda upon 1, that is 3 into 2, 6 plus 3 lambda which is equal to lambda minus 5. So on taking first two quantities, it become 2 lambda minus 11 and lambda is equal to minus 11 upon 2. Now on taking last two, it becomes 6 lambda minus 5, that is 6 lambda minus 30 which is equal to 12 lambda plus 3. So this is on taking last two. Now it become minus 6 lambda which is equal to 33 and it become lambda is equal to minus 11 upon 2. So the required equation of plane, that is 2 minus 11 upon 2 into x plus minus 11 upon 2 minus 5 into y plus minus 44 upon 2 plus 1 into z minus 3 plus 5 into 11 upon 2 which is equal to 0. So it become minus 7 upon 2x minus 21 upon 2 y minus 42 upon 2 z plus 49 which is equal to 0. Now on taking 7 common, it will become x plus 3y plus 6z minus 7 is equal to 0. And here we taken the common 7 upon 2 and negative sign, along with negative sign. So our final equation is, that is x plus 3y plus 6z which is equal to 7. So our correct option is
Hence, option 3 is correct. Thank you.